Shall I start the class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In the previous class, we have studied about curve. Naman, can you tell me how many types of curves are there? They, सर दो टाइप से कर्व होता है. Utpal, how many types of curves are there? Two type. No. In the previous class, I already teach you that there are three types of curves. What are they? The first one is simple curve. Yes, sir. And the second one is open curve. Line curve. Close curve. Third. And the third one is Close curve. close curve. Close curve. Yes, sir. These are the three types of curves. Okay. Yes, sir. Now tell me, Naman, what do you mean by simple curve? सर जो ओपन पूरा रहता है जैसे No. सर दिखा सकते हैं हम दिखा सकते हैं Yes. दिखाओ. सर इस टाइप का कर्व को बोलते हैं सिंपल. नहीं, this is not the simple curve. Simple curves means a curve which does not cross itself. Is it okay? Simple curve is a curve which does not cross itself. Naman, you draw this line like this. Yes, sir. You draw the curve like this. Now tell me, how many Yes, times sir. this curve cross itself? One, two times. No, how can you say two times? One times, two Three, times, three times, One, and four times. 2, 3 times, 4 times. Okay, Utpal, you understand it? Yes, sir. Yes, sir. What I ask you, how many times these curves cross itself? सर तो ये होगा ना. Yes, the first point, this curve will cross itself at point 1. ये जो कर्व है अपने आप को कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, कितने जगह पे कट कर रहा है? 4 टाइम्स. ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 टाइम्स. तो जो सिंपल कर्व होता है is a curve which never cross itself. What I said? Simple curve is a curve which never cross itself. For example, this curve. Is this curve cross itself at any point? No, sir. Then which type of curve is this? Simple curve. Simple curve. Now open curve. Open curve is a curve whose initial and final point does not meet. जो खुला रहता है. खुला कैसे रहेगा? उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीट ना करता हो. ठीक है. सपोज करो ये कोई कर्व है. ठीक है. इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाला. इसका फाइनल पॉइंट क्या है? मानो ये वाला. क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीट कर रहा है? ये कैसा कर्व होगा? ओपन कर्व. चलो 4 कैसा कर्व होगा? सर ओपन कर्व. क्यों? यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा है? सर सी होगा सिंपल कर्व. ये नहीं बेटा, ये सिंपल कर्व कैसे होगा? ओपन कर्व. सिंपल कर्व क्या बोलता है? तो सर ये ओपन कर्व होगा. देखो नमन, सिंपल कर्व क्या बोलता है कि वैसा कर्व जो कभी भी अपने आप को क्रॉस ना करता हो. अब ये देखो ये 4 है,
ये इस पॉइंट पर अपने आप को क्रॉस कर रहा है ना, हाउ कैन यू से दैट दिस कर्व इज ए सिंपल कर्व? दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व. This is the example of open curve because the initial and the final point will not meet for this curve. Is this okay? Yes, This sir. is the example of which type of curve? This is the round. No. This 4 is the example of which type of curve? Open curve. Open curve. Why? Because the initial and the final Open point curve. will Because not initial not meet. meets to meet together. Okay. Together. उत्पल समझ में आ रही है? Yes, sir. Now, the third one, that is the closed curve. That means the initial and the final point will meet. Is it okay? For example, 8. Tell me, suppose this is the Yes, initial sir. point and the final point is also Yes, here. sir. Means initial Yes, and sir. final point coincide with one another. This type of curve is the example of the closed curve. Is this clear? Yes. This is the example of Yes, sir. which type of curve is this? So, open curve. Close curve. Close curve. How can you say that this is open curve? Close curve. Which type of Closed curve curve. is this? Sir, close curve. Close Which curve. type of curve Close is curve. this? Which type of curve is this? Sir, close curve. No, this is Close the open curve. curve. This is the open curve. Open curve. Because Sixth open curve. initial point is here and the final point is here. सर हम ये वाला बोल रहे थे. सर हम Is it 0 clear? को बोल रहे थे. Is it clear? Yes, sir. Yes. Anyone Yes, sir. have any doubt? No, sir. No? Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Satish, why are you late? Satish, Yes, sir. why are you late? Yes, sir. Why are you late? Satish, tell me. सर थोड़ा अटेंडेंस लेकर के आते हैं. कौन सा अटेंडेंस? क्लास करो. ओके सर. अब सर देखो. सो हाँ. सो गए थे. नहीं बेटा, सोना नहीं है. ठीक है, 4 बजे जगना है. ठीक है, ठीक है. यस सर. हाँ. अब देखो, हमने पढ़ा, आज हम लोग क्या पढ़े? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व को पढ़े. ठीक है. अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ क्लोज कर्व. पार्ट्स ऑफ Close curve. क्लोज्ड कर्व. सतीश, क्लोज कर्व क्या होता है बताओ बेटा? सर ये सब के भी पार्ट्स होता है. हाँ. सतीश, क्लोज कर्व क्या होता है? हाँ, नहीं पता. कल पढ़ा था ना पिछले क्लास में. क्लोज कर्व क्या होता है? नमन बताएगा. सर जो पूरा क्लोज होता है, जिसका जो दोनों पॉइंट होता है वो पूरा टच हो जाता है, उसको कहते हैं क्लोज कर्व. हाँ, मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है. इनिशियल और फाइनल जैसे पॉइंट. देखो 8, ये Yes, क्या है? sir. एक क्लोज कर्व है. 0, ये क्या है? क्लोज कर्व है. क्लोज कर्व. ठीक है. क्लोज कर्व. अब देखो क्लोज कर्व का पार्ट्स sir. क्या होता है? सर्कल. सर्कल क्या होता है? क्लोज कर्व. क्लोज कर्व है. अब ये बताओ, इस क्लोज कर्व का कितना पार्ट हो सकता है? कोई बताओगे? 2 हाँ, 1 2 3 4. क्या काउंट कर रहा है नमन? क्या काउंट इसका कर कोई रहे हो? पार्ट होगा भी कि नहीं सर? देखो, जो क्लोज कर्व होता है ना, उसका 3 पार्ट होता है. कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है. 1 2 3 4. 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 3
तीन। 3 पार्ट्स। अब देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द दूसरे कर्व। पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री ऑफ द कर्व। बाउंड्री ऑफ द कर्व। ठीक है। अब देखो सपोज करो नमन कुमार, ये आपका घर है। सर लास्ट क्या बोले हैं? बाउंड्री ऑफ द कर्व। नमन मान लो ये आपका Yes, sir. रूम है, ठीक है। आपके रूम के चारों बगल क्या है? यस सर। बाउंड्री। बाउंड्री है, दीवार, पिलर, पिलर है, दीवार है। बाउंड्री। अब देखो यस सर, यस सर। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हो, यस सर। तो अगर मानो आप यहाँ पे हो, आप क्या बोलोगे? घर में हो? नो सर। क्या बोलोगे? मैं घर के मतलब मेरे रूम के बाहर हूँ। रूम के बाहर हो? तो हाँ। ये जो एरिया होते हैं ये क्या होते हैं? बाहरी एरिया है घर के। यस सर। मतलब ये जो रेड कलर का ये बाउंड्री देख रहे हो, ये जो पिलर देख रहे हो, ये जो वॉल देख रहे हो, इसके बाहर जो भी एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर के बाहर है। यस सर। घर के बाहर तो एक्सटर्नल। उसी तरह जो क्लोज कर्व होते हैं ना, सपोज करो ये एक सर्कल क्या है? क्लोज कर्व है। यस सर। तो ये बाउंड्री देख रहे हो कौन सा कलर का है? यस सर। क्लोज करो। ये ब्लैक, बाउंड्री कौन से कलर का है? ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक है, ब्राउन। ब्राउन। तो ये ब्राउन के बाहर जो एरिया होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाहरी इलाका। बाहरी एरिया मतलब क्या? और बाहर शब्द के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ऑफ द कर्व। एक्सटर्नल ऑफ द कर्व। एक्सटर्नल नहीं, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। बोलो जोर से, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक है। यस सर। उत्पल मानो तुम स्कूल के बाहर चले जाओगे तो तुम कहाँ होगे? स्कूल के बाहर होगे, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व होगे। मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए कहाँ पे है? सर ये कहाँ पे है? हाँ, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व है। इज इट ओके? अब देखो सपोज करो नमन आप अपने घर में हो, अपने रूम में हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, तो क्या बोलोगे अगर आपसे कोई पूछे नमन तुम कहाँ हो? क्या आपका आंसर होगा? इंटीरियर ऑफ द कर्व। मतलब क्या इंटीरियर आप ऑफ घर के अंदर हो? कहाँ पे हो? घर के अंदर हो। अंदर। और इसी तरह अंदर। जो चीज जो ये रेड कलर का देख रहे हो, ये रेड कलर का ये सब यस सर। ये देख रहे हो, दिख रहा है रेड कलर का ये सब? यस सर। यस सर। तो ये क्या है? इस बाउंड्री के अंदर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व। अब देखो कोई एक ऐसा बाउंड्री या पिलर हो, कोई ऐसा एक पिलर होगा या दीवार होगा जो एक्सटीरियर और इंटीरियर को सेपरेट करता होगा। आपको कैसे पता चला कि आप एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो? ये चीज का आपको पता कैसे चलता है? क्योंकि हम बाउंड्री के द्वारा। बाउंड्री के द्वारा। बाउंड्री के थ्रू। हाँ। हाँ। अगर तुम क्या होता है, अगर तुम घर के बाहर हो कैसे तुमको पता चला? तुम घर के जो बाउंड्री हो उससे बाहर हो, तो एक जो ये होता है जो बाउंड्री होता है जो क्या करता है? सेपरेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ द कर्व। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो बाउंड्री क्या करता है? सेपरेट करता है किस चीज को?
बॉन्ड बाउंड्री इंटीरियर और सेपरेट करता है किस चीज को? सेपरेट इंटीरियर एंड इंटीरियर of the और curve. एक्सटीरियर Yes, interior of the curve with और एक्सटीरियर एक्सटीरियर exterior of the curve. Is this clear यस सर or not? तो अब चलो बताओ, यस सर is this a curve or not? Yes. यस यस सर Yes, this is a curve. Now tell me, point A is interior of the curve, exterior of Yes, the sir. curve, or boundary of the curve? सर इंटीरियर The curve. Interior of the curve. Okay. Now tell me, इंटीरियर point ऑफ B. द कर्व Point B, is this the interior of the curve, exterior of the curve, or boundary of the curve? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व एक्सटीरियर ऑफ द कर्व Exterior of the curve. Now tell me, point C is on the boundary or the interior of the curve or exterior of the curve? On the bound. बाउंड्री On ऑन the द boundary of बाउंड्री the ऑफ द curve. कर्व Is it okay? So every closed curve have three parts. The first part is called the interior of the curve. The second part is called the exterior of the curve, and the third part is called the boundary of the curve. So you must remember that every closed figure, every closed curve have these three parts. Is it clear? यस सर Or anyone have any doubt? नो सर Okay. Now a word that is reason. What do you mean by reason? Reason of the curve. Can anyone tell me what do you mean by reason of the curve? Yes. रीजन ऑफ द कर्व कर्व का क्या रीजन होता है देखो, reason of curve is nothing. If you add the interior of the curve plus the boundary of the curve is called the reason of the curve. Is it okay? What is reason of the curve? The interior of the curve plus the boundary of the curve is called the reason of the curve. It is clear? Yes, sir. You must remember that reason of the curve is the interior of the curve plus the boundary of the curve. अगर हम लोग एक्सटीरियर को बाहर कर दें और जो चीज बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ द कर्व. Is this okay? यस सर So this whole part is called the reason of the curve. Is it okay? यस सर Yes, This sir. whole part is called the reason of the curve. Anyone have any doubt? No, sir. No? नो सर No? सर Yes. एक बार रीजन ऑफ द कर्व समझा दीजिए ना मैंने क्या बोला? जो रीजन ऑफ कर्व होता है वो क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द कर्व, ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस द बाउंड्री ऑफ द कर्व. इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ द कर्व. ठीक है? यस सर नहीं? हाँ, यस सर ठीक है चलो. Shall I erase it? Yes, यस sir. Shall I erase it? यस सर Yes. Okay. After knowing about the boundary of the curve, the reason of the curve, and the interior of the curve or exterior of the curve, we will know about polygon. Polygons. Can anyone tell me what is polygon? Polygon, it is a two-dimensional closed shape
made of line segment, made of line segment या straight line, straight lines only। ठीक है, देखो पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज शेप है। इज दिस ओके? क्लोज शेप का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर जाएंगे। इज दिस ओके? Yes. अब टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल क्या होता है? हाँ जी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशन हो। डायमेंशन मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये है क्या, Boundary. रेक्टेंगल है। बाउंड्री। यस सर, ये रेक्टेंगल है। यस सर। रेक्टेंगल के कितने डायमेंशन है? ये ब्रेथ होते हैं, और कहाँ होते हैं, एक ब्रेथ, और ये क्या होते हैं, ब्रेथ, लेंथ। लेंथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल के कितने डायमेंशन है, सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशन है। तो ठीक है, इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो पॉलीगॉन क्या है, एक दो डायमेंशन क्लोज शेप है। ठीक है, और किससे मिलके बने हुए, लाइन सेगमेंट से। तो बता सकते हो लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट? यस सर, ये जो नीचे का रहता है ना, देखो, ये नीचे ऊपर में बात मत करो। लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका दोनों साइड टर्मिनेटिंग हो। मतलब क्या, एक लाइन जिसका दो एंड पॉइंट हो। जैसे ये एक लाइन है, इसका ये क्या है, ए और बी क्या है, एंड पॉइंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट Lines. बोलेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। क्या होता है इसका, फिक्स लेंथ होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखो ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन Yes, सेगमेंट है। तो पॉलीगॉन क्या होता है, एक टू डायमेंशनल क्लोज शेप होता है, जो किससे बना हुआ, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, या स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगर मैं ऐसे कर दूं, क्या ये पॉलीगॉन होगा? No, sir. नहीं। No, क्यों? sir. क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, या नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये क्या होंगे, पॉलीगॉन नहीं होंगे। इट इज ओके? नहीं होंगे। यस सर। ये पॉलीगॉन होंगे? Yes, sir. होंगे। यस सर। क्यों? इसके पास कितने डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, सिर्फ एक, लेंथ और टू। ब्रेथ है। देखो, जिस जिस फिगर को हम लोग अपने प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर। अब जैसे देखो इस बुक को, ये दिख रहा है कॉपी, यस इसका देखो एक डायमेंशन ये हुआ, यस सर दूसरा डायमेंशन इसका ये हुआ, यस सर और तीसरा डायमेंशन इसका ये हुआ। यस ये क्या होंगे, थ्री डायमेंशनल हो गए। क्या हो गए, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशन। ठीक है, जैसे ये पर्स है, यस सर। इस पर्स में कितने डायमेंशन है, 3 4 दो, एक ये हुआ डायमेंशन, 4, 2 तीन डायमेंशन है, सर, 2 डायमेंशनल। थ्री है, एक ये है, और एक ये है, यस और एक ये मोटाई है इसमें। Yes, sir.
अपना शरीर का कितना डायमेंशन है? बोलते हैं ना लोग 3D मूवी देखने जा रहे हैं। कभी सुनते होंगे थिएटर में 3D मूवी लगा है सिनेमा हॉल में, उसमें एक चश्मा देता है Yes. देखने के लिए, देता है ना? यस सर। देखो 3 डायमेंशनल में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे ये कैसा दिख रहा है? 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यों? इसके पास ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। ये क्या है? इसके पास हाइट है। इज दिस ओके? Yes, sir. तो जो पॉलीगॉन होता है वो कौन सा फिगर है? 2 डायमेंशनल क्लोज शेप। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes. पॉलीगॉन क्या है? 2 डायमेंशनल Close shape. क्लोज शेप। और किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन से। इज दिस क्लियर? Yes. किससे बना होता है? Line segment या straight line से. Line स्ट्रेट लाइन से। straight line से। अब बताओ क्या ये पॉलीगॉन होगा? इज दिस ए पॉलीगॉन? कौन सा सर? ये वाला फिगर? ये No, sir. नो सर। उत्पल, इज दिस ए पॉलीगॉन? उत्पल? नो सर, नो सर। No, this is not a polygon. Why? इसका यहाँ पे क्या है? ये क्योंकि क्लोज्ड है। यहाँ पे सर इसमें जॉइंट है। हाँ, closed मतलब ये क्लोज नहीं है। शेप नहीं है। Is this okay? Yes. Now tell me, is this a polygon? नो सर। Why? No, sir. No, sir. Why? Because sir, it's the 3-dimensional. Yes, this is not a polygon. Why? Because this figure have 3 dimension. Okay? And polygon must have only 2 dimension. यहाँ पे क्या क्लोज फिगर तो है, लेकिन इसके पास कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। इसलिए यह क्या है? पॉलीगॉन नहीं है। इट इज क्लियर? Yes sir. तो पॉलीगॉन क्या होंगे? सबसे पहले 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर होंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. और क्या होंगे? वो लाइन सेगमेंट से बने होंगे या स्ट्रेट लाइन से। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका फिक्स्ड लेंथ होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखते हो यहाँ पे क्या इसका फिक्स्ड लेंथ है, मीन्स क्या? 2 टर्मिनेटिंग पॉइंट है, 2 एंडिंग पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन सॉरी लाइन सेगमेंट बोलते हैं। Line क्लियर? segment बोलते हैं। Sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, shall I erase this? Yes, sir. Yes sir. Now look at, is this a polygon? Yes, sir. Okay. Yes sir. Now tell me, how many sides are there in this polygon? 4. 4 sides. 4. 1 2 3 4. ओके, तो जो भी पॉलीगॉन होंगे उसमें क्या होंगे? साइड्स होंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. कोई जरूरी नहीं कि उसके पास 4 साइड्स हों, साइड्स कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे? क्लोज साइड होंगे। इज दिस ओके? Yes, sir. तो पॉलीगॉन के पास सबसे पहला चीज क्या होगा? साइड्स। और साइड्स होता क्या है? पॉलीगॉन किससे मिलके बना होता है? साइड से। और साइड क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. उसके बाद क्या होते हैं? वर्टेक्स। क्या होते हैं पॉलीगॉन के पास? वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है?
वो पॉइंट जहां पे दो लाइन सेगमेंट मीट करता हो। अब बताओ इस फिगर में दो लाइन किस किस पॉइंट पे मीट करता हुआ दिख रहा है? सर ए बी सी डी पर। मतलब क्या, ये जो एक पॉइंट है, यस सर। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, यस यस ये सर। वाला, ये वाला और ये वाला, यस ये क्या है? जो लाइन सेगमेंट है दोनों मीट कर रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, तो इसी Yes. को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इट इज क्लियर? जहां पे क्या यस हो, सर। दो लाइन सेगमेंट का कॉमन पॉइंट हो, वर्टेक्स को बोलते हैं। What a टू लाइन हैव कॉमन एंडिंग पॉइंट। इट इज क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब बताओ इस फिगर में हाउ मेनी साइड्स आर देयर? How many sides are there? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is this a polygon? Utpal, Yes sir. is this a polygon? Yes sir. Why? Tell Sir, me, is is this a two-dimensional figure? yes sir. Yes. Is this a closed figure? Yes sir. Yes. Is this figure made from line segment? Yes sir. Yes. That means this is a polygon. Poly Now, this polygon have how many sides? This polygon have 7. how? 7. 7. And how many vertex? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. This figure have 7 vertex. And what is vertex? Two line have common. Line have Yes. Two line or line segment have common ending point. Is it clear? Yes sir. yes. Anyone have any doubt? Now tell No me, sir. what is this? What is this? Diagonal. What is this? What is this? Diagonals. जैसे देखो ये है ना फिगर, Yes sir. A, B, C, D, ये एक फिगर है। इसके कितने Yes, sir. वर्टेक्स हैं? Vertex 1, 2, 3, 4. 4. 4 वर्टेक्स हैं। अब क्या Yes, करो, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? A B. AC AC. तो इस AC को ज्वाइन कर दो। ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल और पॉलीगॉन। क्या कहलाएंगे? Diagonal of D का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? किसका B का? D का DB. B DB. होगा। तो D को B से ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल कहलाएंगे। इज दिस ओके? Yes sir. हाँ, Yes sir. तो डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग opposite vertex. Is this clear? Yes sir. Yes sir. किसी कोई डाउट? No sir. Shall I erase this? Sir,
सर तो राइट कर रहे हैं। हो गया सर। राइट कर लो। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है? चलो एक चीज और पढ़ लो, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है?